Hello students. Now we have already started with the topic electric field due to a continuous charge distribution, and we have already solved one question that what is electric field due to a straight wire which is having uniform distribution of linear charge at some point P at on its axis. The next question that we are going to solve today now is electric field due to uniformly charged ring at a point on its axis. Now this is a question we need to find out. Electric field due to a uniformly charged ring at a point which is located on its axis. Consider this as a ring, and let us say the radius of ring is given by r. Charge q is uniformly distributed over this ring. Okay, it is already been given that charge of q is uniformly distributed over ring, and question to us is that we need to find out electric field at this point P, which is a distance x from the center. We need to find electric field at this point P located on axis of ring, and that is a distance x from the center of ring. Okay, so what we'll do, we'll have to find out electric field at this point. We already know what we have to do. We have to consider a small element over here. Let us say this small element is equal to dq. So the first step is to find out what electric field due to this small element. So electric field due to this small element at point P will be like this way outward. It will be given as dE. So what is the value of the dE? Electric field, or we can write down as E, let us say, electric field due to small element. What is that? What is that? dE. It is K into dQ divided by square of distance. This distance is nothing else but what? Under root r square plus x square using Pythagoras theorem. So it will come out to be square of under root r square plus x square. So it is nothing else but r square plus x square only. So this is the value of electric field that we are getting at this point due to this small element dq. Now just as we have this dq element over here, we'll have one more dq element exactly opposite to this element, and for each element we'll have such opposite element. Due to this opposite element, electric field dE will be in this direction. Even this distance is under root r square plus x square. Charge also we have considered as dq only. So both this electric field will be same as far as their magnitude is concerned, and direction we have already described over here. Let us consider this angle as theta. Then what will happen? This dE will get resolved into these two components, dE cos theta and dE sin theta. Similarly, even this by symmetry angle will be same as theta. One more, we can say dE cos theta along this direction and dE sin theta along this direction. So this is how it will look like. Now, if you consider all such elements, all dE cos theta will be along this direction, and all these dE sin theta components will be in mutually opposite directions. Those dE sin theta components will get cancelled,
and resultant electric field at this point P will be summation of all these cos theta components only. So resultant electric field E is integration of d cos theta. We already have the value of d as what? K into dq upon r square plus x square. If this angle is theta, then this is also theta. Cos theta will be given as adjacent side upon hypotenuse side. So adjacent side x upon hypotenuse side under root r square plus x square can be written as r square plus x square raised to 1 by 2. Some constant k x, even r square plus x square, 1 plus 1 by 2, 3 by 2, they all are constant. They will come out because x is not going to change, even r is not going to change. So what will remain over here? Integration of dq. Now what is integration of dq? Integration of dq means it is sum of total charge on ring, and total charge on ring is what? Capital Q. So electric field can be given as kqx upon r square plus x square raised to 3 by 2. This is how we can write down the value of electric field. Now this is the value of general expression of electric field at any point lying on axis of the ring. At center of ring, we know that at center of ring we'll put x is equal to 0, and therefore electric field will come out to be what? 0 at center of ring. For value of x very much large than radius, if point is located at very large distance as compared to radius of ring, in such case this term r square plus x square will be nearly equal to x square only. So x square raised to 3 by 2 will be x cube. So electric field in that case kq x by x cube, which will be eventually kq by x square, because from very large distance even this ring will appear as what? Point charge only. And as x tends to infinite, if this x tends to infinite, electric field will again be equal to, or rather we can say tend to what? 0. So what we are getting that electric field E varies with distance. At center it is 0, at very much large distance it tends to 0. What does it indicate? It should increase initially and then it will decrease like this way. So there should be one point on axis where this electric field is maximum, and now we need to find out this point where this electric field is maximum. So now this is the formula of electric field that is given as kqx by r square plus x square raised to 3 by 2. And as we already discussed that electric field at center will be equal to 0 and electric field at infinity will tend to 0. That we have already shown in the graph. So there must be this kind of graph. The electric field first will increase, it will reach its maximum value, and then it will decrease and tend to 0 at the infinity. We need to find out this point. What is the coordinate of this point at which this electric field attains its maximum value? We need to find out this point at which the electric field is maximum. So how to find out this? We already know that we need to find out a point where E is maximum with respect to this variable, that is x. So for that I have to differentiate this E with respect to x and relate it with 0. And we'll find out the coordinate of x for which E is maximum. So it comes up to be d by dx of what? Kqx upon r square plus x square whole raised to 3 by 2 equals to 0. K and Q, their constant will come out, go on other side will become 0. So we will be left with d by dx of x by r square plus x square whole raised to 3 by 2 is 0. So this u by v type of differentiation, we already know it can be found as v into du minus u into dv divided by v square. जहाँ पे हमारा u जो है वो x है
and what is value of v? r square plus x square raised to 3 by 2. How will solve this? इसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखिए v जो है हमारा, पहले हम उससे बाहर लेंगे r square plus x square raised to 3 by 2. d by dx of what? x. d by dx of x क्या होगा? 1. फिर माइनस u. u मतलब क्या है हमारा? x. d by dx of v, तो ये डिनोमिनेटर v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर 3 by 2 आगे आएगा, r square plus x square 3 by 2 minus 1, so it will be what? 1 by 2. और क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है तो अंदर के ब्रैकेट का भी डिफरेंशिएशन होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. r कांस्टेंट है, r स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का 2x. डिनोमिनेटर में चलिए r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3 by 2 का स्क्वायर, मतलब कि उसका क्यूब इज इक्वल टू 0. इसे हम इस तरफ ले जाएंगे जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है. ये 2 और 2 को हम जो है वो कैंसिल कर सकते हैं. अब ये जो न्यूमरेटर है हमारा, उसमें से एक काम कर सकते हैं हम, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 1 by 2 कॉमन ले लें. अब यहाँ से r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 1 by 2 चले जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि 3 by 2 में से 1 by 2 चले जाएगा तो उसकी पावर क्या बचेगी? 1 माइनस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 1 by 2 तो बाहर चले गए, 3 into x into x, so what is that? 3x square is equal to what? 0. अब ये तो दो टर्म का एडिशन है, दोनों स्क्वायर है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, मतलब कि यही टर्म 0 होना चाहिए. r square minus 2x square is equal to 0, 2x square is equal to r square, so x is equal to what? x is equal to r by root 2, but it should be plus or minus. Why plus or minus? क्या मतलब ये अगर हमारी रिंग है और इसके ऊपर चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरिएशन अगर ऑफ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का देख रहा हूँ यहाँ से x के साथ, तो कुछ इस तरह होगा. यहाँ पे प्लस r by root 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी और जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगी, और दूसरी तरफ जाऊंगा तो ये ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा. यहाँ पे माइनस r by root 2 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, लेकिन इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन. तो दोनों कोऑर्डिनेट रिंग के दोनों तरफ r by root 2 डिस्टेंस पे जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम मिलेगी. क्या होगी वो मैक्सिमम वैल्यू? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है तो कैसे मैं ढूंढ सकता हूँ? अब ये जो x की वैल्यू है इसे मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ. देखिए जो मैक्सिमम भी हमें मिल जाएगा. काफी सिंपल सी चीज है. ये चीज आप पॉज करके अगर चाहिए तो नोट डाउन कर लेना. यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E क्या होगी? E maximum will be what? KQ. What is X? R by root 2 upon R square plus X square की जगह पे R square by 2 whole raised to 3 by 2 means it is KQR by root 2 upon 2 plus 1, that is 3R square by 2. R square raised to 3 by 2 का तो चलो R क्यूब निकल गया फ्रेंड. अब क्या बचा? 3 by 2 raised to 3 by 2. जब भी मैं x की पावर 3 by 2 बोलता हूँ मतलब ये क्या हो गया? x raised to 1 by 2 और उसका क्यूब, मतलब रूट x का क्यूब, मतलब 3 by 2 के रूट का क्यूब. तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं 3 by 2 जो है उसके रूट का क्यूब, तो क्या आएगी वो वैल्यू? रूट 3 का क्यूब, रूट 3 into रूट 3 into रूट 3, मतलब 3 रूट 3 अपॉन 2 रूट 2. उसे मैं इसी तरह लिखता हूँ 3 रूट 3 डिवाइड बाय 2 रूट 2. जो चीजें कैंसिल हो रही है दोनों के डिनोमिनेटर में से रूट 2 कैंसिल होगा, एक r कैंसिल होगा, r स्क्वायर बच जाएगा. यहाँ पे ये 2 को हम ऊपर ले जा सकते हैं तो क्या बचेगा? न्यूमरेटर में 2k क्यूब, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 3 रूट 3 r स्क्वायर. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आ चुका है जेईई में और नीट में, लेकिन ज्यादा फोकस जो है मैक्सिमम पे नहीं होता. यहाँ पे ज्यादा फोकस जो है वो ये चीज पे है कि कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी. तो वो दोनों तरफ r by root 2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम हमें मिलेगी. देखिए अभी ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हमें बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं, बहुत सारी उसकी वैरायटी है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा वो चेंज नहीं होने वाला है.
बेसिक कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन हम ले रहे, चलिए ये पहले ओल्ड टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन था जिसमें हम ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पे ये आर्क है हमारी, और ये जो आर्क हमने यहाँ पे दिखाई है, इस आर्क के ऊपर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है। जो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या है हमारी, लैम्बडा। और इसके वजह से ये आर्क जो है वो सेंटर पे थीटा जितना एंगल भी सबटेंड करता है, ये भी चीज हमें दी हुई है। ये थीटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे हमें आसानी हो समझने में, 0 से ये थीटा। इस आर्क के वजह से यहाँ पे ओरिजिन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमें ढूंढना है। वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू दिस आर्क व्हिच इज placed like this way, touching x-axis, subtending angle theta at the origin, placed in first quadrant. What is the electric field? तो हमारा बेसिक जो कंसेप्ट है वो फिर से चेंज नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, एक छोटा एलिमेंट लेना, एलिमेंट के ऊपर का चार्ज ढूंढना, और फिर जो है उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ के इंटीग्रेशन करना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम कुछ इस तरह सेंटर से फाई डिस्टेंस पे या तो फाई एंगल पे एक डी फाई एंगल सबटेंड कर रहा हूं, इसकी रेडियस हमें दी हुई है, चलिए यार ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे एक डी फाई एंगल सबटेंड करे, वैसा ही एक एलिमेंट ले रहे हैं। तो इस एलिमेंट की लेंथ क्या होगी, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट, ये छोटा एलिमेंट आर्क लेंथ हो गया, दैट इज रेडियस इनटू एंगल, सो इट इज इक्वल टू r इनटू व्हाट, d phi। इफ दिस इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट, देन व्हाट इज चार्ज ऑन एलिमेंट, चार्ज ऑन एलिमेंट जो होगा dq, वो क्या होगा, चार्ज ऑन एलिमेंट विल बी लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, दैट इज लैम्बडा r d phi। इस लैम्बडा r d phi, ये जो dq चार्ज है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी dE, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एट ओरिजिन dE will be k dq by r square, that is k lambda r d phi by r square, r जो कैंसिल होगा, so it is k lambda by r into d phi। अब अगर इस d के हम बात करें तो नेगेटिव x एक्सिस से phi एंगल पे है, ये d भी म्यूचुअली ऑपोजिट, तो d के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक ये हो सकता है d cos phi, और यहाँ पे ये जो है वो दूसरा कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस जो है वो d sin phi है। तो ये बताइए d का x कंपोनेंट de cos phi, अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन तो मैं माइनस ले लेता हूं यहाँ पे। सिमिलरली इस d का y कंपोनेंट dy, तो माइनस d sin phi, ये दोनों हमें कंपोनेंट मिल रहे हैं अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। अब मुझे अगर ढूंढना है ex, तो क्या होगा ex यहाँ पे, it will be simply integration of dx, that is integration of de, that is k lambda by r cos phi with minus sign into d phi, क्योंकि याद रखिए कि de की वैल्यू हमारी क्या है, k lambda by r into d phi, तो यहाँ पे d की जगह पे हमने रखा k lambda by r into d phi। तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, phi के रिस्पेक्ट में। phi की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 0 से होते हुए थीटा तक, तो लिमिट क्या रखे हम, 0 से थीटा, ये माइनस के लैम्बडा बाय आर को मैं बाहर ले सकता हूँ। cos phi का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन है तो cos का प्लस ही होता है, तो प्लस sin phi 0 टू थीटा माइनस के लैम्बडा बाय आर माइनस sin थीटा, माइनस माइनस प्लस sin 0, बट sin 0 इज 0 ओनली, तो ये हमारा ex कंपोनेंट मिल गया। जिस तरह हमने ex ढूंढा है उसी तरह हम ey भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस के लैम्बडा बाय sin थीटा माइनस sin 0, लेकिन sin 0 क्या है, 0, सो माइनस के लैम्बडा बाय r, ये माइनस अगर यहाँ नहीं रखना है तो इसे अंदर भी लिख सकते हैं, के लैम्बडा बाय r इनटू माइनस sin थीटा। अब जो ey है वो क्या होगा,
इंटीग्रेशन ऑफ डी ई बाय, सिमिलरली इसकी भी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा बाय आर विद माइनस साइन फाई इंटू डी फाई। देखिए मैंने डी ई बाय की वैल्यू यहाँ से लिखी है माइनस डी साइन फाई, डी इज के लैम्डा बाय आर इंटू डी फाई एंड देन दिस विल बी साइन फाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा। So over here also I can take minus k lambda by r outside. Integration of sin phi is what? Minus cos phi from 0 to theta minus k lambda by r minus cos theta minus minus plus cos 0 is 1, लेकिन अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो k lambda by r cos theta minus 1, इस तरीके से हमें ये जो है वो E y मिलेगा। इस तरीके की अगर आर्क है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E अगर मैं लेना चाहूं तो Ex I कैप प्लस Ey j कैप, दोनों में से हम k लैम्डा बाहर लेते हैं, माइनस साइन थीटा I कैप प्लस cos थीटा माइनस 1 j कैप के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हमें मिल रहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत सारी जगह पे इसका यूज हो सकता है। अब देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया ये काफी इंपॉर्टेंट आया हमारे पास, k लैम्डा बाय r इनटू ब्रैकेट माइनस साइन थीटा i कैप प्लस cos थीटा माइनस 1 j कैप। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है हमें, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरी हमें ये लूप दी हुई है या तो आर्क दी हुई है, तो जो एंगल है हमारा थीटा उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी पाई बाय 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना काफी इजी है मेरे लिए, क्या करूंगा मैं सिर्फ थीटा की जगह पे पाई बाय 2 रखूंगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी k लैम्डा बाय r sin पाई बाय 2 इज 1, सो माइनस i कैप cos pi by 2 is 0, 0 minus 1, so it is minus j cap. माइनस i कैप माइनस j कैप मतलब x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में एक k लैम्डा बाय r है और y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में भी एक k लैम्डा बाय r है। कुछ इस तरह मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल रही है, मतलब अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना चाहूं तो इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी k लैम्डा बाय r अंडर रूट 1 प्लस 1, सो दैट विल बी रूट 2 k लैम्डा बाय r। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है, डायरेक्शन में भी मिल रहा है, मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है। अब अगर क्वेश्चन में चेंज ये कर लेते हैं कि यार हमारी इस क्वाड्रेंट में होती तो क्या होता, देखिए ये चीजें हमें रिलेट करनी है, यहाँ पे थोड़ा हमें लॉजिकल चलना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट क्वाड्रेंट में हमें मिल रहा है, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो उसका ऑपोजिट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये रूट 2 k लैम्डा बाय r मिलेगा, मतलब उसके दो कंपोनेंट ऐसे होंगे k लैम्डा बाय r k लैम्डा बाय r। देखिए ये k लैम्डा बाय r और ये k लैम्डा बाय r। अगर मेरी r थर्ड क्वाड्रेंट में होती तो क्या होता, ऑपोजिट साइड मतलब यहाँ पे मिलता रूट 2 k लैम्डा बाय r, मतलब इसके ये दो कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में मिलते k लैम्डा बाय r k लैम्डा बाय r। और सिमिलरली अगर हम बात करें कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होती तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में। दूसरी पॉसिबिलिटी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जगह अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे ना होते हुए उसके तरफ होती, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड हैव बीन टुवर्ड्स दैट आर्क। तो फर्स्ट है तो टुवर्ड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे सेकंड है तो टुवर्ड्स सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड है तो टुवर्ड्स थर्ड क्वाड्रेंट, लाइक दैट वे। And if any other angle is given to you apart from pi by 2, then also it is quite simple to find out the value of electric field. अब अगर एक और क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जामों में आ चुका है, देखिए काफी सिंपल है, बिल्कुल कोई गलती की यहाँ पे हमें गुंजाइश नहीं रखनी। ये x एक्सिस ये y एक्सिस और मुझे कुछ इस तरीके की आर्क दी हुई है। अब ये आर्क को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज सेमी सर्कुलर आर्क। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। एक तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, रटा हुआ है आपने, तो 0 से लेके पाई एंगल की वैल्यू पाई रख दो, सीधे आंसर आ जाएगा आपका। अगर नहीं रटा हुआ तो अभी जो मैंने चीज बताई कि एक क्वाड्रेंट को आपको याद रखना है, ऑपोजिट k लैम्डा बाय k लैम्डा बाय।
तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें फिर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूं तो क्या आएगा, एक के लैम्डा बाय कंपोनेंट यहाँ पे, एक के लैम्डा बाय कंपोनेंट यहाँ पे, ये जो है किसकी वजह से, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से। फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक के लैम्डा बाय यहाँ पे, एक के लैम्डा बाय यहाँ पे, कुछ इस तरह आएगा। ये जो मैंने 1 1 लिखा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो 2 2 लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट की आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या है, सेम है, k लैम्डा बाय r। ये दोनों म्यूचुअली ऑपोजिट है तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 2k लैम्डा बाय r। कहां पे है, तो डायरेक्शन अगर पूछा है तो -j कैप। कई बार k को 1/4 पाई एप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन में से 2 कैंसिल करूं तो माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r j कैप, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिलेगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो r पे है तो आप इजीली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से ढूंढ सकते हो।